Students, how are you? Are you fine? Good, very good. Dear students, ਕੱਲ ਅਸੀਂ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈਟੀਟੀ ਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਦ ਵੀਡੀਓ। पहला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है, कल 75 तक हुए सी। 76 नंबर क्वेश्चन है which of the following burns by producing a yellow luminous flame के हेठ लिखिया विचों केड़ा अजिहा पदार्थ है जेड़ा कि येलो कलर दी फ्लेम यानी कि पीले रंग दी फ्लेम दे नाल चमकदार फ्लेम दे नाल जलदा है कि ये नेचुरल गैस है कि कोक है वैक्स है कि चारकोल है। हुण आपां नूं ये पता है कि ये सारे ही पदार्थ बलनशील पदार्थ ने परंतु नेचुरल गैस दे जदों गलदी है तो नीले रंग की लाट पैदा करती है, कोक जिहड़ा हुंदा धुआं कढदा है, चारकोल तो भी धुआं निकलता है और वैक्स जो हुंदी है ना मोम जदों ये जलदी है मोमबत्ती की लाट का आपां नूं पता है कि वो लुमिनस फ्लेम होंदी है, पीले रंग की फ्लेम होंदी है। तो इस करके द राइट आंसर इज वैक्स, सी ऑप्शन वैक्स। 77 द हाइड्रोकार्बन which has alternate single and double bonds arranged in the form of a ring is एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਐਟਮ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਸਿੰਗਲ ਐਂਡ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਲਟਰਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਸਿੰਗਲ ਤੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਅ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ कि वो साइक्लोब्यूटीन है कि बेंजीन है कि ब्यूटीन है कि हेक्सीन है। तो इन्हां दे विचों आंसर राइट आंसर बेंजीन है। जदों असीं स्ट्रक्चर पढ़ते हाँ तो बेंजीन की स्ट्रक्चर जदों असीं देखते हाँ तो इस तरह करके एक दो तीन चार पाँच छे इस तरह करके जे इत्थे डबल बॉन्ड है इत्थे छड़ के इत्थे सिंगल बॉन्ड इत्थे डबल बॉन्ड इत्थे सिंगल बॉन्ड फिर इत्थे डबल बॉन्ड मतलब ए सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच और इसका फार्मूला होता है C6H6 बेंजीन। 6 कार्बन के एटम 6 हाइड्रोजन के एटम 6 और इस तरह करके ये है भी एक रिंग फॉर्म दे विच और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरह करके एक रिंग की शेप दे विच अटैच होंगे ने कार्बन ते हाइड्रोजन के एटम। तो इस करके द राइट आंसर इज बेंजीन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट जिंक प्लांट और can be converted into zinc oxide by the process of जिंक प्लांट एक और है जिंक दी कच्ची धात है और होंगी कच्ची धात कैन बी कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड इस नूं जिंक ऑक्साइड दे विच असीं बदलना है ते ये प्रोसैस किस तरह इन्हां विचों किहड़ा प्रोसैस असीं अडॉप्ट करांगे कि ये रोस्टिंग होएगी। रोस्टिंग का मतलब होंदा खुली हवा दे विच फर्नेस दे विच खुली हवा दे विच जलाना। हाइड्रोजीनेशन का मतलब होंदा हाइड्रोजन ऐड करना, क्लोरीनेशन का मतलब क्लोरीन ऐड करना और कैल्सीनेशन का मतलब होंदा है कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर दे विच गर्म करना। तो ये जिहड़ा जिंक ब्लेंड है ना पहला मैं तुहानूं दस दियां कि इसका एक और जिहड़ी हैगी ना ये जिंक सल्फाइड होंदी है। तो जिंक सल्फाइड नूं असीं जिंक ऑक्साइड दे विच बदलना है
ਤੇ ਜੇਕਰ ਖੁੱਲੀ ਸਪਲਾਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਰੋਸਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਕ ਬਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ which of the following has a triple bond as well as a single bond? Ethene, methane, ethine, nitrogen। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲਕੇਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਲਕੀਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਲਕਾਈਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਲਕੇਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ CnH2n+2 ਅਲਕੇਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ CnH2n ਔਰ ਐਲਕਾਈਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ CnH2n-2। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ which of the following has a triple bond as well as single bond? ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਹਰਾ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਥਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਥਾਈਨ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਲਕੇਨ, ਅਲਕੀਨ ਤੇ ਅਲਕਾਈਨ। ਇਹ ਅਲਕਾਈਨ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਅਲਕਾਈਨ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ C2H2 ਕਾਰਬਨ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ और इतने हाइड्रोजन इस एसिटिलीन भी कहते हैं। इसका एक और नाम भी है एसिटिलीन या इथाइन और ये फार्मूला केड़ा होया? फार्मूला ये होया CnH2n-2 क्योंकि कार्बन के इसके विच दो एटम ने, हाइड्रोजन के 2n मीनिंग के 4-2 ये बन गया CnH4 विच 2 माइनस करेंगे ना 2। बात ये कि अल्काइन जो है फार्मूला CnH2n-2 वाला अल्केन ते अल्काइन वाला वो फार्मूला लग गया ते वो उसका नाम की हैगा इथाइन एसिटिलीन इसका आम नाम है। इस करके सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है a salt whose aqueous solution will have a pH of more than 7 will be। और pH hydrogen ion concentration, percentage of hydrogen ion the concentration ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि इस तरह जेकर ਅਸੀਂ pH देखिए ਤੇ ਉਹ solution ਜਿਸ ਦੀ pH वैल्यू 7 है वो न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना वो अल्काइन है या बेसिक है। 7 तो घट 0 तो लेके 7 तक एसिडिक होता है बेशक ते एक तो ऊपर 7 तो ऊपर 14 तक ये जिहड़ा वैल्यू होती है ते 7 तो लेके 14 तक जेकर पीएच वैल्यू होवे तां वो बेसिक या अल्कलाइन सॉल्यूशन ਜਿਹੜਾ ਅਲਕਲਾਈਨ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਹੈ ਅ ਸਾਲਟ whose aqueous solution ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਲਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ will have a pH of more than 7 ਵੀ ਉਸ ਦੀ pH ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਬੇਸਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। परंतु जेकर बाकियां दी आपां डिस्कस करिए तो पोटाशियम सल्फेट जिहड़ा हैगा ना ये एक आम कंपाउंड साल्ट है
ये मतलब बेसिक या एसिडिक नहीं। वैसे भी ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਲੂਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਇਆ। ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨਿਸ਼ਾਦਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੈ ਬੇਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਤੇ ਅਲਕਲਾਈਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਇਸਦੀ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। 81 A saturated hydrocarbon has 50 hydrogen atom. Saturated hydrocarbon has 50 hydrogen atom in its molecule. The number of carbon atom in the molecule will be। ਹੁਣ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਐਟਮ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਟਮ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਐਟਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਐਟਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਟਮ ਉੱਥੇ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਐਟਮ ਆ ਕੇ ਤੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ 50 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ। ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ C ਤੇ H, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 50 ਨੇ, 50 ਐਟਮਸ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਇਨ ਇਟਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਇਨ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਿਲ ਬੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਕੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ CnH2n+2। ਹੁਣ ਜੇਕਰ 50 ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ 50 ਤੇ ਇਹ +2 ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਈਏ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ 48 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ +2 ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 48। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਐਡ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੇਗਾ CnH2n+2 ਅਲਕੇਨ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਫ 24 48 ਦਾ ਹਾਫ 24। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ 24 ਵਾਲਾ B option is the right option. Let us proceed further. Okay, 82 number question को डिस्कस करते हैं। Let us proceed further. 82 number question है, consider the following equation of the chemical reaction of a metal M. 4M plus 3 oxygen is equal to 2M2O3। तो बिगनिंग से दसते हैं कि यह जी मैटल है वो M यूज किया हुआ है और 4 इसके एटम ने नंबर ऑफ एटम्स, और ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने 3। मतलब कि बैलेंस करने वास्ते इक्वेशन आपको पता भी असी न्यूमरल्स दी यूटिलाइजेशन करते हैं। तो हुण इस नूं चंगी तरह ध्यान नाल वेख के ते इन्हां विचों A B C ते D दे विचों जिहड़ी करैक्ट ऑप्शन है वो असीं पता करनी है। तो उस दे विच इसने ये पूछा, पहली ऑप्शन है कहता है ये की है कि रिएक्शन ऑफ अ मेटल M एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन है। भी ये कॉम्बिनेशन तो है दो चीज़ें, मतलब ये मेटल ते ऑक्सीजन कंबाइन हुए ने, परंतु दूसरी जिहड़ी कंडीशन है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का निकल जाना, परंतु हाइड्रोजन इस निकलने वाली कोई भी गल है ही नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं इत्थे। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन साड़ी ये गलत है। बी ऑप्शन डीकंपोजिशन रिएक्शन, भी ये डीकंपोजिशन है। डीकंपोजिशन वाली तो कोई गल ये है ही नहीं। जो कि कोई कंपाउंड होवे
चिट्टे दे कंपाउंड ते वो टुटे सारा भागां दे विच ते उदों डीकंपोजिशन हुंदी है, वो भी है नहीं इत्थे। सी ऑप्शन हैगी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, भी ऑक्सीडेशन का ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट होता है एक की थां ते दूजी चीज़ आ जाए, दूजी थां ते पहली आ जाए, उन्होंने डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, परंतु डिस्प्लेसमेंट वाली भी कोई गल नहीं है। तो डी ऑप्शन है कहता कॉम्बीनेशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कॉम्बीनेशन तो हैगी है, ये मैटर तो ऑक्सीजन कंबाइन किया इन्होंने, तो ऑक्सीडेशन भी हुई है, ऑक्सीडेशन भी हुई है क्योंकि ऑक्सीजन इतने ऐड हो रही है, करके जी डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन, द इंडिकेटर विच टर्न रेड इन एसिड सॉल्यूशन आर, भी वो इंडिकेटर ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 9 10th ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਐਸਿਡ ਨੇ ਉਹ ਨੀਲੇ ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਲ ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ जो लिटमस है नीला लिटमस है लाल होगा, तो इन्होंने विच हुण आपां एक एक ऑप्शन जिहड़ी हैगी है उन्होंने ध्यान नाल देखिए। पहली ऑप्शन है कहता टर्मैरिक एंड लिटमस होएगा, तो ये टर्मैरिक हल्दी वाला पीला कागज ये मतलब रेड हो जाएगा, ऐसी कोई गल नहीं होंगी, भावें आपां नूं पता ही है ये। फिर बी फिनोलपतलीन, फिनोलपतलीन का जी पिंक कलर का रंग चेंज होता है, इस करके ये भी ऑप्शन नहीं होएगी। सी हैगा लिटमस, भी जो नीला लिटमस है वो लाल हो जाएगा एसिड के विच, ते मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर होंदा है ना वो भी इस दे विच एसिडिक जेकर बैकग्राउंड होवे एसिड होवे तो उस दे विच लाल कलर शो करता है, रेड हो जाता है, इस करके सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज। ते डी वे तो फिर फिनोलपतलीन आ गई जिहड़ी कि पिंक कलर का शो करती है, इस करके ये भी ऑप्शन है नहीं, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Okay, 84 number question है, one of the following does not happen during a chemical reaction, this is, भी ਜਦੋਂ कोई क्रिया होती है ना उस वेले chemical reaction वापरती है, उस वेले इन्हां विचों एक चीज़ होंदी है जिहड़ी कि नहीं होंदी, बाकी सारियां होंदियां ने। जिवें कि हुण ए है कहंदा ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स, कि जिहड़े पुराने ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स ने वो टुटदे ने ते नवे केमिकल बॉन्ड बनते हैं, ये तो होंदा रिएक्शन दे विच आम ही होंदी है ये गल, इस करके ये तो वापरदी है। ये मतलब असीं ते पता करना भी जिहड़ी चीज़ नहीं वापरदी विच डज नॉट हैपन। बी की है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टेंस विद इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कि एक नवी बिल्कुल नवी चीज़ बन जाती है तो उस दे जिहड़े प्रॉपर्टीज ने वो भी बिल्कुल अलग होंदियां ने, ये भी चीज़ वापरती है। जो दो रिएक्टेंट करनगे रिएक्ट करनगे तो नवे जिहड़े पदार्थ बनेगा सबसटेंसेस प्रोडक्ट्स बनणगे उहदे गुण बिल्कुल ही डिफरेंट होंदे ने, ये भी चीज़ वापरती है। सी ऑप्शन है एटम्स ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू दोज ऑफ एन अदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स, कि एक एलिमेंट के एटम दूजी तरह के एलिमेंट के एटमां विच बदल जाते हैं, तो जिस दे नाल के न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जी चांदी है वो कोई सोना थोड़ा बन जाएगा, ਜਾਂ सोना ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਥੋੜੇ ਐਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ, ਦਿਸ ਡਸ ਨਾਟ ਹੈਪਨ ਐਟ ਆਲ। ਤਾਂ ਐਟਮਸ ਆਫ ਵਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਦੋਜ਼ ਆਫ ਐਨ ਅਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇਹ ਗਲਤ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ सी ऑप्शन जी ना ये नहीं वापरता। डी ऑप्शन भी ये भी वापरता ही है, ये रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स, जो नवे प्रोडक्ट बनते हैं तो एटम का रीअरेंजमेंट होंगी है। मतलब कि ए बी ते डी ये तो वापरते हैं। सी जो है ना एटम्स ऑफ वन एलीमेंट चेंज इनटू दोज ऑफ एन अदर एलीमेंट, ये नहीं होता। तो अगे चलिए 85 कहते ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ एन इम्प्योर मेटल बाय इलैक्ट्रोलाइसिस, इलैक्ट्रोलाइसिस होंदा की है, जो एक इलैक्ट्रोलाइट लैके जिहदे बिजली लंघ सकती है सोल्यूशन लैके उन्होंने पॉजिटिव तो नैगेटिव बैटरी नाल जोड़ दईए, मतलब एक कैथोड होए एक एनोड होए, दो जिहड़े ने टर्मिनल लैके बैटरी नाल जोड़ के तो बिजली लंघाई जाए ना तो वो टुट जाए इलैक्ट्रोलाइट,
मतलब कि उस नूं कहंदे ने इलैक्ट्रोलाइसिस। मैं जिवें हुण तुहानूं समझावांगा कि कहंदा ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ एन इंप्योर मैटल, एक मैटल है जिहड़ी इंप्योर है, अशुद्ध है, ते एस इलैक्ट्रोलाइसिस मैथड नाल उहनूं प्योर करना है। मैटल इज डिपॉजिटेड एट, तो ये जी मैटल प्योर मैटल है ना, ये कितने जाके डिपॉजिट होगी, ये डिपॉजिट कितने होगी, कितने जाके तो ये डिपॉजिट हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। वो टर्मिनल दसना है। दो टर्मिनल होंगे ने, एक कैथोड होंदा है, एक एनोड होंदा है। एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है, तो ये कितने इकट्ठी होएगी वो दसना है। हुण सपोज कर लो कि इस तरह करके साडे कोल एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, ये इलेक्ट्रोलाइट सपोज कर लो कॉपर सल्फेट है, तो असीं कॉपर मैटल शुद्ध करना है। ये सपोज ये एनोड है धन, तो ये है कैथोड, ऋण। और इस बैटरी नाल जदों असीं जोड़ांगे ते इत्थे की लगा के ते फिर की होएगा कि जदों इसदे विच बिजली लंघेगी ना, ते ये कॉपर सल्फेट जो है that will decompose into copper and sulfate ion। जो सल्फेट आयन है उससे नेगेटिव चार्ज होएगा, कॉपर के उत्ते पॉजिटिव चार्ज होएगा। हुण आपां नूं इह पता है कि जिहड़े ऑपोजिट आयन ने ਜਾਂ ऑपोजिट चार्ज ने एक दूजे ਨੂੰ अट्रैक्ट करते हैं, तो इक्को ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ चार्ज ने एक दूजे ਨੂੰ रिपेल करते हैं। हुण ਜਿਹੜੇ इत्थों कॉपर सल्फेट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ कॉपर ਦੇ आयन होणगे ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਿਓਰ कॉपर सी ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, मतलब कि नेगेटिव टर्मिनल पे। ये आंसर की बनया एट कैथोड। ओके, तो ये सी अज दी वीडियो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ਡ। ਅਗਲੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਿਸ ਚੈਨਲ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਚਰਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਈਵਨ ਦੈਨ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।